Hello guys, this is Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for question number of wonderful substrings from weekly contest 247 lead code. Okay, so medium question, and firstly I will generalize the question, then I will give some approach and then we will see the code. Okay, before this, if you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel. I post CPI tutorials plus DS related videos, and like this video if you got the approach. Number of wonderful strings. So a wonderful string is a string where at most one letter appears an odd number of times. That is CCJJC. Here you can say that C is appearing odd number of times, that is 3, and JJ is appearing even number of times. That's why this whole string is a wonderful string. And here AB is also wonderful, but A and AB is not wonderful. Why? Because A is only appearing one time and B is also appearing one time. Okay, so we we can say that a wonderful string is where only one character is appearing odd number of times and other characters are appearing even number of times. Okay, so this is also a wonderful string, and a string where all characters are appearing even number of times. This is also a wonderful string. Okay, fine. Now we know wonderful string definition. Now we also given a string wonder that consists of first 10 lower characters A to J, return number of wonderful non-empty substrings in word. Okay, so we have to return number of wonderful non-empty substrings in word. Okay, now you can say this example here. See, अगर हमारे पास एक string ABA है, okay, so its every character will be a wonderful substring. How? एक सिंगल कैरेक्टर में एक जो कैरेक्टर है वो इवेंट और टाइम अकर होगा. ओके, सो यू कैन से दैट इफ यू हैव सम स्ट्रिंग ए बी ए, तो वंडरफुल सब स्ट्रिंग्स कैन बी ए बी एंड ए. ओके, सो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ए बी ए. फाइन. देन जैसे कि एक कैरेक्टर है ए बी ए, टोटल स्ट्रिंग भी वंडरफुल है. व्हाई? बिकॉज ए इज अपीयरिंग इवेंट टाइम एंड बी इज अपीयरिंग ऑड टाइम. फाइन. नाउ हाउ आई इंटरप्रेटेड दिस क्वेश्चन इज, मैंने इस क्वेश्चन को कैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन में यू कैन से कन्वर्ट किया कि एक string that have all characters even number of times, okay, or that have n minus 1 characters even times and only one character odd time will be always a palindrome. Okay, so this is one of the interpretation. Okay, तो अगर हमको कहीं क्वेश्चन आता है कि हमें क्या करना है, एक गिवन स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसमें हमें ऑल द सब स्ट्रिंग्स काउंट करनी है जिनको यूज करके हम पैलिंड्रोम बना सकते हैं, then we can use the same approach. Okay, then we can use the same approach in this question also. हम सेम अप्रोच यूज कर सकते हैं. भाई क्योंकि हम सेम स्ट्रेटेजी अपनाएंगे इसमें दोनों में. ठीक है, फाइन. नाउ लेट्स सी सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. सो व्हाट वी कैन यूज इज बिट मास्किंग इन दिस क्वेश्चन. यू कैन इजिली से कि मैं क्या बोल रहा हूं, दैट सपोज आई हैव सम स्ट्रिंग बी ए सी डी ए बी सी. ओके, लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस. Okay, suppose what you have is, if you are an ith character, okay, suppose you are at ith character and you have some thing. तुम्हें यहाँ पे ith character में ये पता है कि कौन सा character कितने times appear हो रहा है. वो कैसे, वो अभी हम कैसे निकाल सकते हैं वो बाद में देखेंगे. पहले हम ith character के लिए ये देख लेते हैं कि कैसे हम पता लगा सकते हैं. तो b कितने टाइम अपीयर हो रहा है, ए आयत कैरेक्टर में ए कितने टाइम अपीयर हो रहा है, दो बार, सी एक बार, डी एक बार, बी एक बार. टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टिल आयत कैरेक्टर आर 5 एंड ऑल अपीयरेंस आर दिस. ठीक है, तो अब अगर हमें इस लेंथ के लिए आंसर निकालना है, ओके, सपोज वी वांट टू गेट द आंसर फॉर दिस लेंथ, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है,
हमें ये पता है कि आई लेंथ तक हमारे पास इतना इतना है, सो वी कैन से वी कैन ऐड ऑल द सब स्ट्रिंग्स। हमें दो तरह की स्ट्रिंग्स चाहिए। फर्स्ट क्या है, जिसमें सारे के सारे इवन हो, ठीक है। तो वी कैन से कि हम ऑल दो सब स्ट्रिंग्स काउंट कर सकते हैं, जिसमें a is equals to 2 हो, c is equals to 1 हो, d is equals to 1 हो, b is equals to 1 हो। Why? अगर c ऑलरेडी किसी सब स्ट्रिंग में 1 था और उसमें ऑड नंबर ऑफ टाइम्स एक और 1 आ गया है, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स c appearing in ith length string will be even. Okay, same goes for d. Total number of times d is appearing in I length will be even. Total number of times b is appearing in I length substring is even. Okay, so we can say कि अगर हमें total number of substrings निकालनी है जिसमें all characters are appearing even number of times, we can say कि हम substrings जिसमें जो हमने अभी करंट स्ट्रिंग I लेंथ के लिए निकाला है वही वाला काउंट हम ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। हाउ, ये मैंने बता दिया कि अगर मान लो कोई स्ट्रिंग इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, यू कैन सी इट लाइक अ पैलिंड्रोम। ओके, पैलिंड्रोम की तरह इसको चेक करो कि अगर हमें ये राइट हाफ अपनी स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम का मिल गया है, तो वी कैन से दैट अगर हमारे पास कोई लेफ्ट हाफ भी है, ओके, वी हैव सम लेफ्ट हाफ ऑलरेडी, then we can say that we can make a whole palindrome from this if we have some left half also. Fine. तो बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि सब ऑब्जर्व इट लाइक अ पैलिंड्रोम दैट इफ वी हैव सम लेफ्ट और राइट हाफ राइट नाउ फॉर आवर ith string फॉर आवर सब स्ट्रिंग ऑफ I लेंथ एंड हमारे पास लेफ्ट हाफ या राइट हाफ ऑलरेडी है, तो वी कैन ऐड नंबर ऑफ दैट सब स्ट्रिंग्स इन आवर आंसर। ठीक है, फाइन। अब ये तो हमारा फर्स्ट टाइप का स्ट्रिंग हो गया जब हमारे ऑल द कैरेक्टर्स आर इवन नंबर ऑफ टाइम्स। फाइन, नाउ वी विल सी आवर सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रिंग जब हमारे ऑल द कैरेक्टर्स सॉरी इवन नंबर ऑफ टाइम्स है बट एक कैरेक्टर उसमें से ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है। ठीक है, फाइन। फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज सपोज n minus 1 characters are even number of times and one character odd number of times। हम इसके लिए आंसर चेक कर रहे हैं। ठीक है, और अभी तक हमारे पास क्या था, मान लो कि अगर आई लेंथ तक हमारे पास इतना 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 था। ठीक है, नाउ फॉर सपोज वी आर चेकिंग फॉर दिस आई प्लस 1th लेंथ। ठीक है, आई प्लस 1th लेंथ में हमें क्या मिला, बी यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 की जगह अब 2 हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ऑल द स्ट्रिंग्स। अब हमारे पास i प्लस 1th लेंथ के लिए हम आंसर निकाल लें कि कितना हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि a to I कैरेक्टर्स हमारे स्ट्रिंग में है, सो वी विल चेक फॉर ऑल द कैरेक्टर्स कि फर्स्ट हम अपने आंसर में क्या ऐड कर देंगे, ऑल द सब स्ट्रिंग्स जिसमें a जो है, ठीक है, जिसमें a ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा और बाकी सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे। then we will go for b, then we will go for c, then d, then e, then f up to j। okay, we will add all the sub strings जिसमें a odd number of times आएगा और बाकी सारे even, जिसमें b odd number of times आएगा बाकी सारे even, जिसमें c number of odd times आएगा बाकी सारे even। okay, fine। now how can we do this is suppose we are checking for I length and we want कि उसमें b number of times जो आ रहा है वो इवन हो जाए, वो ऑड हो जाए। ओके, नंबर ऑफ टाइम्स b जो है वो ऑड रहे, बाकी सब इवन रहे। ओके, सो व्हाट वी कैन सिंपली डू इज हम b की यहाँ पे मान लो कि इसको तो हम सेम रखेंगे, इतना हमें समझ में आ गया कि हमें इसको सेम रखना है ना, और इस वाले को ऑड रखना है। तो ये कैसे हम करेंगे, ये अभी हम देखते हैं अपने कोड में। ठीक है, फाइन। तो हमें दो तरह की स्ट्रिंग निकालनी थी, हमने वो चेक कर लिया। अब हम ये चीज करेंगे कैसे कि हमें यहाँ तक आने में हमें ये पता चल जाए कि कौन सा इवन नंबर ऑफ टाइम्स है और कितना ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। दैट वी कैन सिंपली डू यूजिंग बिट मास्किंग। ओके, सो बिट मास्किंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज वी हैव सम स्ट्रिंग b a c d a
B, C, J. Okay, and we have some binary string of length 10 क्योंकि हमारे पास A to J कैरेक्टर्स हैं ओनली. ठीक है, okay. Now whenever we got some B, what we will do is we will raise second position as 1. Okay, अब A मिली हमें, इसको हमने 1 बना दिया. ठीक है, we can use parity here. Okay, parity को हम 0 कर देंगे जैसे ही हमें कोई नंबर ऑफ टाइम्स इवन मिलेगा. ठीक है, और 1 कर देंगे अगर वो ऑड होगा. ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमें तक क्या मिल रहा है, B और A. हम यहाँ पे हैं और हमें ये और ये 1 टाइम मिला. ठीक है, जैसे ही हमें C मिला हमने C की भी 1 कर दी, D मिला D की भी 1 कर दी, अगेन A मिला. ओके, तो अब A कितना हो गया टोटल सब स्ट्रिंग में 2 टाइम्स, मतलब इवन. सो व्हाट वी कैन सिंपली डू इज वी कैन मेक इट 0. ओके, अगेन D मिला, we can make it 0. Again C मिला, we can make it 0. Again J मिला, we can make it 1. Okay, so simple bit masking से हम क्या कर सकते हैं, अपना initialized with 0 कर दें. Initially हमारे पास सारे के सारे 0 थे, even times you can say. ठीक है, और जैसे हमें कोई कैरेक्टर मिल रहा है, ठीक है, तो what we can simply do is XOR कर दो उसका. ठीक है, XOR कर दोगे तो अगर वो 0 है तो 1 हो जाएगा और 1 है तो 0 हो जाएगा. ठीक है, एक अकाउंट बढ़ता चला जाएगा. फाइन, नाउ वी हैव सम बाइनरी स्ट्रिंग जिसमें ith इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पे हैं, ठीक है, तो ith इंडेक्स पे हमारे पास पीछे की पूरी सब स्ट्रिंग है जिसपे हमें ये पता है कि कौन सा कैरेक्टर इवन है, कौन सा कैरेक्टर अकरेंस ऑड है. ठीक है, नाउ वी कैन सिंपली डू these operations. Okay, now let me show you the code and you will get it. We used a map. Okay, एक मैप ले लिया और एक रिजल्ट जिसमें अपना आंसर स्टोर करवाएंगे. अब प्रीफिक्स XOR सम में मैं अपना क्या स्टोर करवा रहा हूँ, अपना बिट मास्क. ठीक है, बिट स्ट्रिंग और यू कैन से बिट मास्क सिंपली दिस नंबर. प्रीफिक्स XOR सम में मैं अपना ये नंबर स्टोर करवा रहा हूँ. ठीक है, जिसकी ith बिट मान लो जैसे A मिला मुझे, तो मैं क्या करूंगा, A माइनस एथ बिट उसकी सेट कर दूंगा. ठीक है, अगर मान लो C मिला तो C माइनस एथ बिट उसकी सेट कर दूंगा, ऐसे करके. ठीक है, फाइन. नाउ इटरेट इन योर वर्ड. प्रीफिक्स XOR सम विल बी, पहले मैंने क्या किया, प्रीफिक्स XOR सम में उसकी ith बिट XOR कर दी मैंने, मतलब टॉगल कर दी. यू कैन से 0 थी तो 1 कर दी, 1 थी तो 0 कर दी. ठीक है, नाउ रिजल्ट में मैंने क्या किया, ऑल द सब स्ट्रिंग्स जिसमें टोटल नंबर ऑफ जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे इवन थे. ठीक है, रिजल्ट में रिजल्ट प्लस mm ऑफ प्रीफिक्स और सम. यू कैन सिंपली चेक इट एज इन दिस वे कि मुझे लेफ्ट या राइट पार्ट मिला अपने सब स्ट्रिंग का, तो जितने भी सब स्ट्रिंग्स थे जो मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट थे, मैंने यहाँ पे ये चीज बताई है ऑलरेडी. ठीक है, मैंने यहाँ पे ये चीज बताई थी कि अगर A2 है, C1 है, D1 है, B1 है. ठीक है, मान लो ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रीफिक्स XOR सम है, तो मैं आंसर में कितना ऐड कर दूंगा, मैप ऑफ प्रीफिक्स XOR सम. ओके, तो अब मेरा ये आंसर में क्या ऐड हो गया, सिंपली जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स इवन थे. फाइन, फाइन. नाउ आई हैव टू इटरेट इन ऑल A to J कैरेक्टर्स. ठीक है, और मुझे आंसर में अब क्या ऐड करना है, जिसमें jth कैरेक्टर जो है, j इज इक्वल्स टू 0 है तो A, j इज इक्वल्स टू 1 है तो B, सिंपली. ठीक है, jth कैरेक्टर जो है उसका मैंने सिंपली बिट टॉगल कर दिया. इट मींस कि वो कैरेक्टर अब जो है इवन टाइम्स आ रहा है. ठीक है, तो अगर ये चीज आपको सिंपली समझ में आ गई होगी. ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, jth कैरेक्टर जो है वो अब ऑड टाइम आ रहा है और बाकी सारे कैरेक्टर्स तो सेम ही है क्योंकि मैंने उनकी बिट तो टॉगल की नहीं है, तो बाकी सारे जो रेस्ट कैरेक्टर्स हैं वो इवन टाइम्स आ रहे हैं. ओके, फाइन. एंड सिंपली इंक्रीज फॉर करंट प्रीफिक्स XOR सम, और यू कैन से प्रीफिक्स करंट मास्क के लिए तुम अपना काउंट इंक्रीज कर दो. ठीक है, और सिंपली आउटपुट द आंसर. सो इट वाज अ गुड क्वेश्चन. सिंपल मैंने इंटरप्रिटेशन बता दी कि मैंने कैसे इंटरप्रेट किया था. नंबर ऑफ एनाग्राम्स जिसको हम चेंज करके
पैलिंड्रोम बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने हद तक काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन को। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।